مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رمضان الکریم رمضان الکریم۔ نام کیا ہے، کہاں سے ہیں؟ میرا نام محمد الطاف ہے، میں لودھنا سے آیا ہوں۔ میرا نام سہیل نظر ہے، میں ملتان سے آیا ہوں۔ محمد اختر۔ میں الحمدللہ شارجہ سے اعتکاف کرنے کے لیے یہ سعادت حاصل کی ہے امیر سنت کی بارگاہ میں۔ بہاول پور۔ میں فیصل محمود اتاری ہوں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ میں محمد شاہد علی پور سے۔ سلیمان ہاشمی میرا نام ہے اور اسلام آباد سے حاضر ہوئے ہیں۔ احمد اللہ تری بنگلہ دیش سے۔ محمد عبداللطیف، میں اورنگی ٹاؤن سے آیا ہوں۔ جی بالخصوص امیر علیہ سنت کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے 26ویں منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اگر عید پہ سوٹ نہ بھی بنواؤں نا تو میری یہ تقریباً کم و بیش 15 سال سے یہ روٹین ہے کہ 26ویں پہ میں نیا سوٹ ضرور پہنتا ہوں، نئی چپل، نیا سوٹ، وہ اس خوشی میں کہ امیر علیہ سنت کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ پاک مرشد کا سایہ سلامت رکھے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ مرشد کے قدموں کے صدقے ہمیں جانتے ہیں، اور اللہ پاک دونوں جہاں کی عزتیں برکتیں بلائیاں مرشد کے صدقے عطا فرما رہا ہے، اور اللہ پاک مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ میں پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آیا ہوں ابھی۔ الحمدللہ پیر صاحب بہت نوازتے ہیں، ہمیں بہت نوازتے ہیں۔ انہوں نے اتنی شفقت فرمائی، اتنا کرم فرمایا ہم پہ کہ ہمیں الحمدللہ اپنے پاس بلایا۔ پہلی دفعہ میں گیا تھا اور وہاں پر امیر سنت کا دیدار کرا، پیچھے بیٹھ کے مدنی مذاکرہ سنا۔ قریب سے تو دیکھنے سے واقعی جو ایک دفعہ دیکھ لیتے نا، وہ ہے نا جیڑا تکتا ایک باری تکتا ہی جانتا ہے، تو وہ والی مثال ہے بالکل۔ ایک دفعہ جب دیکھ لے بندہ تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ بس مرشد ایک دفعہ گلے سے لگا لیتے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا۔ کبھی ایسا سوچا تو نہیں تھا، لیکن اب مرشد جس پہ کرم کرتے ہیں، اب بیڑا پار ہو گیا، مرشد کی زیارت ہو گئی، اور سے بڑی کیا ہمارے سعادت ہو۔ ملیر سے، میں اپنے ابو کے ساتھ ابھی ہم باپا جان کی بارگاہ میں گئے تھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے باپا جان کو دیکھ کے، اس لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، باپا جان کی زیارت کرتے رہیں گے۔ 7 سال بعد پاکستان آیا ہوں۔ کل میری بابا جانی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، ان کے ساتھ میں نے نماز مغرب پڑھی، ان کے بالکل ساتھ الحمدللہ۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس پیر و مرشد کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، بالکل صف بہ صف کھڑا تھا میں ان کے ساتھ الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے یہ موقع دیا، ناچیز کو امیر علیہ سنت کے برابر میں نفل ادا کرنے کی توفیق دی۔ نماز کے بعد میں نے امیر علیہ سنت کا خوب دیدار کیا الحمدللہ۔ بس باپا جی کے پاس گیا تھا، وہی بہت اچھا لگا۔ ملاقات نہیں ہو پائی، بس ملاقات کرنی ہے باپا جی سے۔ تو کتنی دور سے اپنے پیر صاحب کو دیکھا؟ نماز پڑھی تھی ساتھ باپا جی کے ساتھ، ملاقات بھی ہو جاتی نا، ملاقات نہیں ہوئی نا۔ ساتھ تھے پاپا یعنی کہ کندھے کے ساتھ کندھا۔ کبھی نہیں تصور کیا تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ایسا۔ اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے تھے، میرا ہی نام آیا تو خوش نصیب تو ہوں نا، اتنے دور سے آیا اور باپا جی کے پاس گیا، ساتھ نماز پڑھی، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ مسافہ تو کرنا بنتا ہے نا، باپا جی کا ہاتھ چومنا تو بنتا ہے نا۔ جی پیر صاحب کی زیارت ہو گیا الحمدللہ۔ ملاقات نہیں ہوا۔ پیر صاحب کا چہرہ مبارک دیکھ کر پورا دنیا بھول گیا۔ یہ پیر صاحب سے مل گیا رہا ہوں، ماشاءاللہ مرشد نے یہ انعام بھی عیدی بھی دی ہے۔ خوشی ہو رہی ہے، ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑی حسرت لے گیا تھا مرشد ملاقات، مرشد اچانک بلا لیا ملاقات ہوگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں آؤں، مرشد کی بارگاہ میں حاضر۔ مرشدی اتار پر نور کی برسات۔ جو عبادت کا مزہ اور لطف آ رہا ہے وہ دل کرتا ہے بندہ ادھر سے جائے نہ۔ یعنی عید کے دن بھی میں نے نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ 3 دن ادھر ہی گزارنے، ہو سکتا ہے میں 7 دن اصلاح اعمال کورس بھی ادھر ہی کروں گا۔ حضرت پہلے میں درزی کا کام کرتا تھا، تو الحمدللہ 3 سال پہلے اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت ہوئی، تو ایسا الحمدللہ مزہ آ گیا کہ درزی کا کام ہی چھوڑ دیا۔ یہیں سے نیت میں نے کر لی تھی کہ ابھی درزی کا کام نہیں کروں گا، کچھ اور کام کروں گا، کیونکہ مجھے جو نا الحمدللہ ہر سال جو نا اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ میرے پاس غیر مسلم کاریگر کام کرتے تھے، الحمدللہ جب میں اعتکاف میں بیٹھا تو ان کے بعد جب میرا جانا وہاں پہ ہوا تو الحمدللہ ان کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बापा की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मुस्लिम हूँ। अभी मैं जो ना वालदान के लिए दुआ करूँगा, क्योंकि वालदा की उम्र बड़ी हो गई है, बड़ी मुश्किल से कोई साल में या बात होती है वालदा से, कोई सालों में बात होती है वालदा से, उम्र भी बड़ी हो गई है। बाबा की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ईमान से नवाजे, अल्लाह ताला उनको कलमा नसीब करे। निगरान शूरा का जो बयान होता है ना फजर के बाद, वो सुनने को बड़ा दिल करता है। इतना प्यारा बयान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह मियाँ निगरान शूरा का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे और उन्हें सेहत दे। उस वक्त आपकी कैफियत क्या? मेरे तो चारों तरफ से जी चीखों की आवाजें आ रही थी, इंसान रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। मैं भी अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, अल्लाह से अपनी मफरत की दुआ मांग रहा था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले। मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, हल्के की जो निगरान है वो बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत हद तक जो है वो तमाम लोगों की जो है वो खैरख्वाही बहुत अच्छी तरह की जा रही है। जो सबसे बेहतरीन लगा ना वो जो हमारे हल्का ही निगरान, क्या अदब सिखाया उन्हें। मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता क्या काश मैं भी इनकी तरह बन जाऊँ। क्या अदब सिखाया उन्हें वो नमाज का, खाने पिलाने का, उठने बैठने का, तो बड़ा ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी किसी जगह पे, किसी मोड़ पे इस तरह यूँ लोगों को सिखाऊँ। यहाँ आके हमें पता लगता है कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। यहाँ हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। पहले बार हमने पैसा कमाया, ये वो, आगे पीछे ना नमाज पढ़ी ना कुछ, पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजरी है। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जो दर्स यहाँ मिलता है वो बाहर कहीं नहीं मिलता। मैं 30 दिन के लिए आया था, तो 7-8 दिन बाद ना बीमार हो गया ज़्यादा, डॉक्टर साहब ने घर भेज दिए, तो मैं घर चला गया। घर 3-4 दिन गुजरे तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे ना कोई चीज़ ना जिस्म से लग हो गई। बेचैनी इतनी कि मेडिसिन, इतनी हैवी मेडिसिन खा के भी नींद नहीं थी आ रही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना इधर, घर नहीं रहना, मेरा बैग तैयार कर मैं सुबह वापस जा रहा हूँ। तो मैं 11 तारीख को इधर से वापस गया था और 16 तारीख को मैं फिर वापस आ गया इधर। बरकतें इतनी मिल रही हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं सोऊं। मेरा दिल करता कि मैं सारी रात बाबा जी की बातें सुनते रहूं, कुरान पाक पढ़ता रहूं, तिलावत करता रहूं, लोगों की खिदमत करता रहूं। जब लोग सोए होते हैं उनको उठाने के लिए मेरा जज्बा होता है कि इनको उठाऊं, इनके पैर दबाऊं, उठाऊं, चलो भाई टाइम हो गया है, नमाज का टाइम हो गया, उठे आओ नमाज पढ़े माशाल्लाह। जब आगे उठाते हैं ना मदीना मदीना क्या है कि दिल खुश हो जाता है। इतना तो बस का कैलेंडर भी जो किराया लेता है ना, वो भी बंदे को उठाता है, बड़े गुस्से से उठाता है। यहाँ में बड़े प्यार से उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 44 साल की उम्र में मुझे सुकून नहीं मिला इतना, ना कोई दवाइयों से मिला है, ये इधर आ गया सुकून। 28 साल की जिंदगी में पहली दफा मैं रोजे रख रहा हूँ, 28 साल की जिंदगी में। और शायद ये मेरी जिंदगी का ऐसा वक्त हो कि बाद जमात नमाज इसी महीने मैंने पढ़ी हो। यहाँ आपके बंदा पता चलता है दीन का, कुरान पाक का, नमाज का, तो दिल करता है कि बंदा मतलब छोड़ दे दुनियावी काम। साहब बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया है और इंशाअल्लाह पूरे महीने चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, रोजे भी रखने और नमाज भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़नी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इअ्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ का सवाब पाएंगे। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पारी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नीयत की हो। एहतिकाफ की नीयत नहीं की थी, इफ्तार आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते। एहतिकाफ की नीयत कर लीजिए, अब कर सकते हैं। ताहम
मुनासिब तरीका ये कि कुछ देर पहले से एहतिकाफ की नीयत हो जाए। जब मस्जिद में दाखिल हो कर लें एहतिकाफ की नीयत, और सवाब के लिए करें तो सवाब मिलेगा। इफ्तार के लिए करेंगे तो, या खाने के लिए पीने के लिए, तो सवाब एहतिकाफ का नहीं मिलेगा। तो नीयत करने के बाद कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1443 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 24वीं रात, इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 7 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 12। बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया, जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फुला बिन फुला ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला किस कदर बख्तावर है, खुश नसीब है कि उसका नाम वलदियत विद सन ऑफ बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। यहाँ ये नुक्ता भी इंतहाई माना फरोज है कि कब्र मुनव्वर पर हाजिर फरिश्ते को इस कदर ज़्यादा क़ुव्वत समाअत दी गई है कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। जब खादिम दरबार की क़ुव्वत समाअत यानी सुनने की ताकत का यह हाल है, तो सरकार वाला तबार मक्के मदीने के ताजदार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की क्या शान होगी। वो क्यों ना अपने गुलामों को पहचानेंगे और क्यों ना उनकी फरियाद सुनकर बिइज़्निल्लाह यानी अल्लाह की इजाज़त से उनकी इमदाद फरमाएंगे। और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रमज़ान आलमी मदीने मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा है। मदीने मुज़ाकरा शुरू हो गया है। अब सवालत कीजिए, सवाल का जवाब भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तब पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। जहाँ मैं शाय करता अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब अला। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम बहुत सख्त काम करते हैं, मिस्त्रियों वाला मजदूरी करते हैं, लूमें चलाते हैं, उसमें से अगर हम रोजे रखते हैं तो काम नहीं होता, तो अगर हम काम करते हैं तो रोजा नहीं रखा जाता। अगर हम इस नीयत से रोजा छोड़ते हैं कि मजदूरी औखी मजदूरी है, नहीं कही जाती इतनी रोजा रख के, तो हम गुनाहगार होंगे। मजदूरी की खातिर अगर आप रोजा छोड़ेंगे इसलिए बात है गुनाहगारी होंगे, क्योंकि रोजा तो फर्ज है ना, और ये ऐसा उज़्र नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है जिसके लिए बंदा रोज़ा ही छोड़ दे। फिर तो रोज़ा रखे कौन? जो बेरोजगार हो, बेकार हो, कोई रोज़ा रखे क्या? नहीं नहीं, कुर्बानी देनी है रोज़े के लिए। जितना काम कर सकते हैं उतनी देर रोज़े में काम करें, बाकी आराम करें। ये भूखे तो नहीं मर जाएंगे, इससे मतलब आगे पीछे पैसा तो होता आदमी का, कम खाए, रुकी सूखी से गुजारा करे, लेकिन
रोज़ा तो फ़र्ज़ है, इसको रखना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फ़ियाज़ अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जब वज़ू करते हैं, जब मसा करते वक्त दोनों हाथों को चूम कर आँखों से लगाना कैसा, बराए करम रहनुमाई फरमाएं। लोगों में एक तरीका है मसाह का कि वो इस तरह कर रहे होते हैं, यूँ करेंगे, हालांकि ये कोई सुन्नत नहीं है। फिर वो पानी को यूँ झाड़ेंगे, फिर यूँ करेंगे, अपना इनका तरीका है। अलबत्ता सुन्नत ये है कि वो या तो जिन हाथ धोए तो अब नई तरी लेने की भी ज़रूरत नहीं, वही तरी भी काफ़ी है, क्योंकि मसे में सर तो धोना नहीं है, तरी पहुँचाना है, नमी जो है पानी की। तो वो बस वो यूँ आप मसा कर लें सारे सर का, बाल का, यानी जो भी उसमें आते हैं सर की रेंज में बाल, ऊपर से ये पानी वाला हाथ बिल्कुल ये लगे, इसको फिरे लगे बालों पर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलबत्ता सर के चौथाई हिस्से का मसहा फ़र्ज़ है और पूरे का सुन्नत, कानों का सुन्नत। इसमें एक और बात भी देखी जाती है कि वो अंगूठे चूमते हैं, वो अंगूठे चूम के और फिर वो कलमा शरीफ, कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते वो ये सारा हिसाब किताब जो है ना, वो कलमा शरीफ पढ़ना तो हरज नहीं है, इसमें अच्छी बात है। जैसे दुरूद शरीफ पढ़ने का लिखा है, हर उज़्व धोने में दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है, और दुआएं भी हैं इसकी, लेकिन दुरूद शरीफ अफजल है कि दुरूद भी दुआ है। तो अगर कोई कलमा शहादत पढ़ता है वुज़ू के अंदर, अच्छी बात है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये कि वो अवाम पता नहीं, कलमा शहादत तो अपने काम में, हमने तो देखा बचपन से या जब से उस संभाला है कि वो जो मैंने तरीका बताया यूँ करते हैं, पता नहीं, फिर वो यूँ चूमते हैं, फिर वो सर का मसाज इस तरह भी करते हैं, यूँ करते हैं, गर्दन उंगलियों से खुजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने आपको सुन्नत का जो सुन्नत है वो बताई, लेकिन वुज़ू के तरीके में ये शामिल नहीं है जो आवाम अपने अंदाज में कर रहे होते हैं। यूँ करेंगे, पानी यूँ डाला, चुलू भरा, यूँ निकल गया, यूँ गिरा दिया। फजूल आखिरत में हिसाब किसे देंगे? एक कतरे का हिसाब है। फजूल भी मतलब ये इसराफ है, बिला वजह वुज़ू में ज़्यादा पानी ज़ाया करना, ये इसराफ है। पानी ज़ाया किया तो सारे गुनाह किया। पानी अल्लाह की नेमत है, बेदरेग ज़ाया कर रहे होते, ना जोर जोर से नल खोलते हैं और पानी दड़ गिर रहा है। फिर मसे में नल तो बंद करते नहीं, जो काम करने का है वो नहीं करते, वो यूँ कर रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है। ये सब सीखने से आएगा। आप 7 दिन का नमाज कोर्स कर लें, इसमें इंशाअल्लाह आपको वुज़ू, गुस्ल, नमाज और पता नहीं क्या क्या मसाइल सीखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। और चांद रात से ये कोर्स शुरू हो रहे हैं। अभी जो तासुरात आए, इनमें भी एक ईसाई भाई ने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं ये कोर्स कर लूँ 7 दिन वाला, इस्लाह आमाल। तो अब देर किस बात की, नाम लिखवा दें, कर लें बस। अब अच्छी तो ये अच्छी नीयत बने ना, तो इसमें वो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि वो नफ्स व शैतान वरगला देंगे और मतलब ये कि नीयत बदलवा देंगे। तो इसलिए फ़ौरन से पेशतर अपने आप को बांध दें आप नीयत के साथ कि नहीं मैंने करना है। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए मतलब बड़े मसाइल है। दुनिया सीखने के लिए आदमी बिल्कुल वो तन मन धन से तैयार है, लेकिन आखिरत बनाने के लिए सोचता है, गौर करता है, फिर वसवसे आते हैं, फिर इरादा मुलतवी कर देता है। तो कर लाने, कर गुजरे। एक तासुरात में माशाअल्लाह एक बड़ा जज्बा दर्जी साहब ने दिया कि वो एतिकाफ में आए और दर्जी का काम ही छोड़ दिया कि दर्जी का काम ये रमज़ान की इबादत में रुकावट बनता है। ये तो है, तरावी के लिए इनके मसाइल, रोज़ों के लिए मसाइल, काम बहुत होता है ना दर्जी का काम। इबादत नहीं कर सकते, एतिकाफ नहीं कर सकते। तो यूँ मतलब ये कि दर्जी के जो पब्लिक के जो मुताजिर होते हैं ना, अजीर आम इसको कहते हैं, ये इनकी बात है। अजीर ख़ास जो होते हैं ना,
जो रेडीमेड कारखानों में काम करते हैं उनकी छुट्टियां हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही इनका आमतौर पर स्टॉक हो जाता है इनके पास। इनको कोई इस तरह आवाम का काम तो होता नहीं इनके पास, वो सप्लाई भी हो जाते हैं। तो इस तरह गालिबन रेडीमेड के लिए हो सकता है कहीं मसरूफियत भी होती होगी, लेकिन शायद वो इनको गुंजाइश होती है। आम लोगों का जो दर्जी होता है वो रमज़ान की इबादत उसके लिए बहुत मुश्किल है। कोई करता भी हो तो हो सकता है कि वो करते भी होंगे, अल्लाह के नेक बंदे, इनकी तादाद थोड़ी होगी। इनके नौकर चाकर इतने होंगे या बच्चे जवान हो गए तो अब ये पहले जवानी में जो करना था कर लिया, पैसे कमाने थे कमा लिए, अब वो बुढ़ापे में आकर एहतिकाफ में बैठ गए। अब ज़्यादा ना धागा नज़र आता है कि सुई में डाले, और ये इस तरह की हालत हो हम इबादत शुरू कर दी। चलो ये भी सुबह का भूला शाम को रोटे भूला नहीं कहते, लेकिन बहरा लेके जवान दर्जी जिसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी हुई और वो अगर अल्लाह की रज़ा के लिए पूरे रोज़े रखता है, नहीं कर पाता दिन में रात को काम करूँगा, जितना होगा इतना काम करूँगा और दिन को आराम, रोज़ा भी हो जाएगा। और नमाज नहीं, कैसा भी कहा कि मैं नमाज बाजमात पढ़ूँगा, ऐसे दर्जी होंगे लेकिन बहुत कम होना ऐसा ही चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए हमको अल्लाह रोज़ी देता है, उसका करम है। ये कि दर्जी का काम, मिठाई वालों का काम, ये जो समोसे वगैरह के जो वो मांडे बोलते हैं, मांडा बोलते हैं, पुर बोलते हैं, परब बोलते हैं, इस तरह सफ़ेद सफ़ेद जो रोटी होती है, ये बनाने वाले मैंने खुद देखे। हर वक्त इनको आग पर बैठना होता है। रमज़ान में जो काम इनका होता है ना, शायद रोज़ों का तस्वुर ना किया जा सके। जो आग पर बैठा हो, तरह मिठाई वाले, मैंने मजहबी टाइप के लोगों को देखा है, मिठाई बेचने वाले 27, 28, 29 और इस तरह के जो बड़े दिन जो हैं, इनमें रोज़ा नहीं रख पाते, इनके पास इतना रश होता है। ये मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है। नहीं मतलब दौलत चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और ये सोचते नहीं है कि सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची, मिस्टर जान वापस कीजिए। और सेठ साहब पैसे गिनते गिनते सर एक तरफ ढलक गया, शोर हो गया, भाई तो गिर पड़ा, हार्ट फेल हो गया इसका, उड़ाओ इसको, गया काम से। क्या दौलत काम आई, क्या बैंक बैलेंस काम आया। बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दिए, अंधेरी कब्र इतनी सी मिलेगी, तिरछा करके बाजू को उतारते इतनी तंग बना देते हैं कब्र, कुछ भी अंदर नहीं आएगा। फिर चूंकि आपने दौलत की हिर्स को पाला, हर वक्त लालच, लाओ 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 लाओ, हल में मस्जिद का बोर्ड लगा रखा, मिलता रहे मुझे मिलता रहे। औलाद की भी तरबियत भूल गए कि आपके पीछे कोई मस्जिद बना देता, कोई मदरसा बना देता, कोई खैर खैरात करता। ये आपस में लड़ गई औलाद की, ये प्लाट मैं लूँगा, वो मकान मैं लूँगा, दुकान मेरी, मैंने मेहनत की है। ये लड़ते भिड़ते पहुँचे कोर्ट में, बाप बेचारा कब्र में अलग फंसा हुआ है। ये मुआशरा है हमारा। तो अब तक यानी इस वक्त तो क्या, आँखों की बीनाई सलामत, सुनवाई सलामत, कानों की ताकत, हिम्मत, वो बोलने की एक है मतलब स्टाइल, मतलब सब मौजूद है। लेकिन जूं बूढ़ा पाएगा ना, आवाज़ कांपनी शुरू हो जाएगी, बदन थरथराना शुरू हो जाएगा, औलाद जो है वो साइड होनी शुरू हो जाएगी कि यार अब ये बूढ़े हो गए, लूज टॉकिंग करते हैं, लूज टॉकिंग शुरू हो जाएगी। फिर सब औलाद जो है ना आगे पीछे। और आपने इनकी तरबियत तो की नहीं थी। हाँ, अगर आपने तरबियत की होती ना, इनको दीन सिखाया होता तो ये साइड ना होती। इनको पता होता कि माँ बाप बूढ़े हों तो अब हमारी इनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो खिदमत ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो मजहबी लोग ही करेंगे ये, जिनको हम अच्छी नज़र से इस वक्त नहीं देख रहे। माज़अल्लाह, अल्लाह पाक आफियत दे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं तो आपकी और अपनी सबकी आखिरत की भलाई की बात कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। जो नहीं रखते रोज़े उनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे, रमज़ान के रोज़े पूरे रखें, नमाजें पूरी पढ़ें, जो भी शरीयत के अहकाम उन पर अमल करें, अपने अखलाक भी दुरुस्त करें, किसी को तकलीफ ज़बान से, हाथ से, पाँव से, आँख से नहीं देनी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चांद रात को जो सफ़र करेंगे उनको तो खुशखबरियाँ मिली हैं कि मुलाकात होगी। तो अब जी जो कोर्स की आपने दावत दी है,
तो जो कोर्स करें उनके लिए क्या होगा? कोर्स वाले तो कम से कम 7 दिन का, तो बहरहाल कम से कम है 7 दिन का। जी जी, वो तो फैज़ान मदीना में ही होंगे ना। इनसे भी इंशाल्लाह मैंने ये ज़हन बनाया है कि चांद रात को तो अब मुझे मदनी काफिले वालों की तादाद पता चले ना, अर्ज तो किया मैंने कि तादाद पता चले, तो इस हिसाब से फिर इनको या तो चांद रात को ले लेंगे अगर ये मदनी काफिलों की तादाद मेरे हदफ यानी कि मेरे सोच के मुताबिक होगी। अगर मुझे लगेगा कि माशाअल्लाह आशिकान रसूल जोश में बस ज़्यादा तादाद है इनकी, तो फिर उनको बाद में कर लेंगे 7 दिन के अंदर अंदर किसी मुनासिब मौके पर ये मुशावरत कर लेंगे कि कौन सी रात रखनी, तो किसी रात इनके साथ बैठ जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और बोलो। इंशाअल्लाह हमारे हल्का निगरान जो जिम्मेदारान हैं वो नाम लिखेंगे और तादाद इनकी भी बताएंगे इंशाअल्लाह। इससे हमको मिलेंगे भी परफेक्ट कोर्स वाले, कोर्स के नाम पर लाइन में लग कर के इंसान हो गया खाली मुलाकात, झूठ और धोखा, और यहाँ तो समझते नहीं है इतना जारी है। ये तो माज़अल्लाह यहाँ तक तजर्बा है पिछला कि पैसे जमा करवा देते हैं मदनी काफिलों के, ये ज़ादे राह जिसको हम बोलते हैं, पैसे जमा कराने के बावजूद मुलाकात करके बाज भाग जाते हैं। मतलब खाली हमको मिलना था। कोई कोई तो आकर ऐसा भी मुझे तजर्बा इसलिए बोल रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं कि माफ़ कर देना हम झूठ बोल के आए हैं, मिलना बहुत मिलने का दिल था हमारा। मैं बोलता कि यार अब इसमें मेरे माफ़ करने से थोड़ी माफ़ होगा, तारे को तो आपने तो गुनाह किया है, अल्लाह से तौबा करें। अब वो जा रहे क्या करें, वो जिसको बोल कर आया, फार्म बनाया, कार्ड बनाया, जो भी सब धोखा धोखा धोखा। ये इस तरह के लोग भी आते हैं। और कोई तकरीबकारी या जेब काटना है, चोरी करना मुराद नहीं होता, पर मिलना है। मशहूर आदमी से मिलने को दिल करता है, फिर ये जिंदगी भर गुन गाएंगे है मैंने मुलाकात की है। मशहूर आदमी कोई भी हो ना, तो वरना दुनियावी फील्ड के जो मशहूर होते हैं उनके लिए भी वो मुलाकात बस वो तो ही फिर सबको बोलेंगे फुला अपनी तो मुलाकात भी हुई है इससे, और मुस्कुरा कर यूँ बोला था, मुझे सब याद रहता है। तो ये झूठ धोखा नहीं करना, पैसे छोड़ के भागना नहीं है। लोग जूते छोड़ के भागते हैं, हाँ यार पैसे छोड़ के भागते हैं, ये गुनाहगार होंगे। जो इस तरह किया भी है तो वो सच्ची तौबा करे और आइंदा ना करने का अहद। और अगर कोई माज़अल्लाह ये सोच भी रहा तो हरगिज़ ना करे कि यार क्या लेंगे, ये 100-200 रुपये 400-500 रुपये लेते होंगे एडवांस, ये भी इसलिए कि ये पक्का करने के लिए बेचारे लेते हैं, समझे। तो यूं मतलब है कि ताकि ये मजबूत और मदनी काफिले में सफ़र कर जाए, इनकी ये हिर्स होती है हमारे दारुस्सुन्ना वालों की। और ये मतलब इनको कि यार चलो चारों इतना खर्चा करके आए हैं दूर से सफ़र करके, सिर्फ मुलाकात के लिए तो आ नहीं सकते, कोई गारंटी भी नहीं कि मुलाकात होगी, तो यूं चलो अपने 200-400 इधर उधर मुलाकात करके ही जाते हैं। यूं मतलब ईजी लेते होंगे, लेकिन ये जहन्नम में जाने वाला काम है, ये देख लीजिएगा। झूठ धोखा दोनों इसमें शामिल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक सवाल है कि नमाज में 2 वाजिब छूट जाएं तो क्या हुक्म है? नमाज में 2 वाजिब छूट जाए, चाहे 10 वाजिब छूट जाए, अगर गलती से छूटे नमाज के वाजिब तो एक ही सजदे सब काफ़ी है। सोशल मीडिया पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। एक सवाल है कि अगर किसी शख्स के पैसे गुम हो जाएं या छिन जाते हैं, मोबाइल वगैरह छिन जाता है, तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ सदका निकल गया, क्या इस तरह सदका अदा हो जाता है? ये बस मुहावरा है कि जान जो सदका हो गया है ना, जान का सदका चला गया। लेकिन ये वो सदका वाजिबा तो है नहीं ना, बोलते हैं इस तरह। ये बोलना अल्लाह बेहतर जाने इसका क्या करे, इसका ये जुमले का अब बोलते हैं खाली जान का सदका चला गया, चलो यार। ये तसल्ली देते हैं अपने आप को, या दूसरा कोई तसल्ली देता है यार टेंशन नहीं लो, अब जान का सदका गया। कि
यूं कि मतलब अगर ये माल ना जाता और तुमको जान से मार दिया जाता तो डाकू मार भी देते हैं, तो खाली पैसे लेने पर डन किया इन्होंने, जान का सदका किया, तुम्हारी जान बच गई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर नमाज की पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो अब दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरह नास, सूरह फातिहा के बाद सूरह नास। तो अब दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरह नास। एक और सवाल ये है कि जुमातुल विदा के बारे में मशहूर है कि इस दिन 12 रकात अदा कर ली जाएं तो क़ज़ाए उम्री हो जाती है, तो क्या ये सही है? आप ये 12 भी ज़्यादा है, 4 में भी पूरी कर लेते हैं, 2 में भी कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी अंधी चलेगी। पूरी पूरी एक रकात क्या, एक सजदा भी कम नहीं हो सकता। जितनी भी नमाजें क़ज़ा उम्री हैं वो पूरी की पूरी अदा करनी। जुम्मतुल वदा में ये अलग तरीका है कि इसकी तौबा यूँ करे, नवाफिल पढ़कर 4 रकात का ये गलबन तौबा करेगा, जो गुनाह हो गया क़ज़ा उम्री का अल्लाह माफ़ कर दे, मगर क़ज़ा उम्री बाकी है, वो तो करनी ही करनी है। सल्लू अलल हबीब। एक और सवाल ये है कि दौरान फ़र्ज़ नमाज दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो गया तो नमाज अदा होगी या क़ज़ा? इसमें यह है कि जैसे फज्र, जुमुआ और ईद, ईदैन, दोनों ईदें, इनमें तो ये लाजिम है कि वक्त के अंदर अंदर सलाम भी फिर जाए। बाकी नमाजों में अगर वक्त के अंदर अंदर तकबीर तहरीमा कह ली तो अब यह कि सलाम भले वक्त गुजर गया तो बाद में अगर किया तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन फिर सुन्नत फजर में फिर अलग मसला है। बहार शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 455 मसला नंबर 31, अगर कोई शख्स तुलुए फजर से पेश तरीने पहले नमाज नफल पढ़ रहा था, एक रकात पढ़ चुका था कि फजर तुलू कर आई, दूसरी भी पढ़कर पूरी कर ले, और ये दोनों रकातें सुन्नत फजर के कायम मकाम नहीं हो सकती। और अगर 4 रकात की नियत की थी और एक रकात के बाद तुलुए फजर हुआ और 4 रकातें पूरी कर ली तो पिछली 2 रकातें सुन्नत फजर के कायम मकाम हो जाएंगी। की बारगाह में अर्ज है कि लाइव मदनी मुज़ाकरा उसमें मुरीद बनाया जा रहा हूँ, तो क्या इस्लामी बहनें जो हैं वो मुरीद हो सकती हैं लाइव? दूसरा ये कि मेरी बेटी खदीजतुल कुबरा नाम है, उनको अपनी मुरीदीन में शामिल फरमा दें और उनके लिए दुनिया आखिरत के हवाले से दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। खदीजतुल कुबरा को मैंने बैत कर लिया, सिलसिले में दाखिल कर लिया। अच्छा, और यह कि इस तरह जो बैत होती है लाइव, तो इसमें बैत कर सकते हैं, जब भी तो कर रहे हैं हम लोग, वरना तो करते नहीं ना, कोई हर्ज नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बातों गलत फहमी होती है कि हाथ में हाथ दिए बगैर बैत होती नहीं है, और तो वहाँ क्या करना है, इनको बैत कैसे करेंगे? समझ में आई ना बात? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, इसका उजाला नामे मोहम्मद, काया दुफा वाला दुखी इल्ला सहारा, कसम खुदा दी महमूदा नाम प्यारा, थोड़ टुकड़े दुनिया की चल मदीने चलते हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। प्यारे बापा जान, मैंने आज पहला रोजा रखा है, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमाए। मैंने आज पहला रोजा रखा, आज मेरा पहला रोजा है, मैं अपने रोजे का सवाब आपके बारगाह में पेश करता हूँ। खुदा मेरे बाप को आबाद रख,
जन्नती 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 फातिमा और अली भी जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती जन्नती। मेरा आपसे ये सवाल है, कुछ लोग बर्थडे में एक दूसरे के मुंह पर केक लगाते हैं, क्या ये लगा सकते हैं? नहीं आई। अच्छा, केक लगा देते मुंह पे? ये एक तो होता है वो मोहब्बत के साथ कुछ चीज़ें मल देना, तो एक ये सूरत है, और एक तो बाकायदा ये पूरा छाप देते हैं मुंह के ऊपर इसने लगा के इस तरह। अच्छा, ये भी है। केक ही नहीं होना चाहिए, नारे बांस न बजे बांसुरी, केक की सालगिरह में ना हो। ये तो बड़े, जिस पर मुंह पे डाला उसकी उस पर गुजरेगी क्या? ये भी खी करके हंसता होगा, तो इस तरह का माहौल होता होगा, लेकिन फिर आजमाइश में तो पड़ता होगा ना, मुंह में, आँखों में, कहाँ कपड़े खराब होते होंगे, फिर ये कि ज़ाया भी होता होगा। जो ये केक में जो पुरकशिश जो होता है वो तो क्रीम होती है इसकी, वो तो सब लगी, तो वो तो हाँ आगे पीछे हो गई, खाने को दिल भी ना करे केक, ऐसा पसीने वाले मुंह पे डगा दिया तो ऐसी हरकत तो नहीं करनी, ये तो बिल्कुल जायज़ तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें दो खराबियां तो मौजूद हैं। अगले को तकलीफ तो होनी है, बोला कि ये हंस रहा है, वो अपनी शर्म छुपा रहा है, जेब छुपा रहा है, जेब मिटाने के लिए हंस रहा है, तो हकीकत में इसको तकलीफ तो होगी। अगर आप बोलोगे ना हाँ तुम खड़े हो जाओ मैं केक ला रहा हूँ लगाऊंगा, तो कोई भी नहीं खड़ा होगा, ये लगता होगा धोखे से ही। तो एक तो दिल आज़ारी सख्त, दूसरा इसमें माल का ज़ाया करना भी पाया जा रहा है कि ये जो डालेंगे केक यूँ लगाएंगे तो केक की कीमत तो ख़त्म हो गई, और ये जो भी कीमती मसाला जो इसका ऊपर होता है, क्रीम और सब सारा मुफ्त नहीं आता है, और ये सारा ये भी इसका शेप बिल्कुल तबाह हो गया, बदन पे लगा, इसको कोई चाटने से तो रहा, ये धो कर फेंक देंगे, है ना, तो इसमें माल ज़ाया करना भी बाजार तो नज़र आ रहा है। तकलीफ का अंसर तो वाज़े इसके अंदर, बिल्कुल अज़ियत जो पहुँच रही है उसे। ये चलो माल बाजार तो माल ज़ाया करना नज़र आ रहा है कि मुंह पे मारा, ज़ाया तो होगा, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसका ज़ाया होगा, और ये चीज़ है महंगी, कीमत तो लगती है इसकी, तो बाजार तो ये कि ये गुनाह के काम हैं, ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये कि अच्छे काम नहीं है, ये इससे बचना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे सवाल है कि किसी गरीब लड़की को लोग मिलकर जहेज देते हैं और वो निसाब से ज्यादा हो जाए तो इस पर ज़कात का क्या हुक्म है? यानी अगर उसके पास इतना माल जमा हो गया कि अब वो खुद साहिब निसाब हो गया, तो अव्वल तो अब उसको ज़कात मज़ीद दे नहीं सकते। दूसरा, इस पर जो ज़कात होगी वो चूँकि ये साहिब निसाब अब हुआ है सवाल की रोशनी में, तो जब साल पूरा गुज़रेगा और साल पूरा होने पर अगर उसके पास निसाब बाकी है तो इस सूरत में इसके ऊपर ज़कात होगी। ये सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है, क्या मुअत्तकिफ़ गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर सो सकता है? प्लीज़ जवाब इरशाद फरमा दें। मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मस्जिद की छत पर बिला वजह चढ़ना तो मकरूह लिखा है। गर्मी जो आम होती है उसकी बुनियाद पर भी चढ़ना मकरूह लिखा है। जमात के लिए चढ़ना, नमाज पढ़ने के लिए चढ़ना मकरूह लिखा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा नाम आमिना बिन अब्दुल माजिद है और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत में रात की बारगाह में सवाल अर्ज है कि पहले के ज़माने में जब बुजुर्गाने दीन के दरवाज़ों पर मांगने वाले आया करते थे तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे, बल्कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी उन्हें अता कर दिया करते थे। लेकिन आजकल हमें मांगने वालों को कुछ भी सामान देने से मना किया जाता है। तो उस ज़माने के मांगने वालों में और आपके ज़माने में मांगने वालों में क्या है फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है बज़ाहिर, यानी कि ये उस वक्त भी ज़रा बुजुर्गान दिन सोचते होंगे कि इसको ये हकदार है कि नहीं, इसको देना है कि नहीं देना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई बुजुर्ग हुआ ना होगा, है ना। बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, मखलूक में सबसे बड़े हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मांगने के लिए आया। आपने फरमाया कि क्या तेरे घर में कुछ नहीं? अर्ज़ किया हाँ, एक टाट है जो हम कुछ बिछा लेते हैं, कुछ ओढ़ लेते हैं, और एक प्याला जिसमें पानी पीते हैं। और फरमाया वो दोनों हमारे पास ले आओ। वो ये दोनों चीजें हाजिर लाए। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया और फरमाया ये कौन खरीदता है? एक शख्स ने कहा 1 दिरहम में मैं लेता हूं। आपने 2 या 3 बार फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा कौन देता है? एक साहब बोले कि मैं 2 दिरहम में लेता हूं। आपने फरमाया ये दोनों चीजें इन्हें दे दो, और 2 दिरहम इन अंसारी को दिए और फरमाया इनमें से एक का गल्ला यानी अनाज खरीद कर मैं घर में डाल दे, और दूसरे की कुल्हाड़ी खरीद कर, दूसरे दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ला। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल्हाड़ी लाए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस ने मुबारक हाथ से उसमें दस्ता डाला, कि वो लकड़ी का ही गालिबन दस्ता होगा, तो लकड़ी डाली। फिर फरमाया जाओ लकड़ियां काटो और बेचो, और अब मैं तुम्हें 15 दिन तक ना देखूं। फिर वो साहिब लकड़ियां काटते और बेचते रहे। फिर हाजिर हुए और 10 दिरहम कमा चुके थे। उसने कुछ दिरहमों से कपड़ा और कुछ से गल्ला यानी अनाज खरीदा। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये इससे बेहतर है कि सवालात तुम्हारे लिए ये इससे बेहतर है कि सवालात क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह में दाग बनकर आए। 3 शख्सों के सिवा किसी को सवाल जायज नहीं। कमर तोड़ फकीरी, या रुस्वा कुन कर्ज, या तकलीफ दे खून से। मुफ्ती साहब इस हदीस मुबारक के तहत एक मकाम पर फरमाते हैं हलाल पेशा, हलाल धंधा खा कितना ही मामूली हो, भीख मांगने से अफजल है कि इसमें दुनिया आखिरत में इज्जत है। अफसोस आज बहुत से लोग इस तालीम को भूल गए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, सुना है कि फरिश्ते जो है वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ सुनते हैं, तो क्या यह सही है? और क्यों फरिश्ते जो है वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते? ये रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर करते थे। हर फरिश्ता नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं है, तो कुछ फरिश्ते से जो जिनको पढ़ने पर कुदरत हासिल नहीं है, तो ये मतलब नमाजियों का एजाज़ है एक तरह से कि नमाजी के मुंह पर मुंह रख देते हैं और वो तिलावत सुनते हैं। और अगर मुंह में कोई गिज़ा का ज़र्रा यानी कि रेशा वगैरह दांतों में, इनको शदीद तकलीफ होती है। यानी ऐसी तकलीफ होती है कि किसी और चीज़ से ऐसी तकलीफ इनको नहीं होती। ये हदीसें हैं, इसीलिए वो मुंह साफ करना है, रेशे निकालने ये तिनकों से। और इसमें हमारी भलाई भी है कि दांत खराब नहीं होंगे, मुंह में बदबू नहीं होगी। दांत वरना वो सड़ते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि इस्लाम के हर हुक्म में भलाई हमारी ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा हज़रत साहब से सवाल है कि ये जो नहरी पानी चोरी करना होता है ये कैसा है, और इसको अपने हिस्से में इस्तेमाल करना है, इसके क्या शरई अहकामात हैं, इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। खुदा फरमा रहे हैं चोरी करना, तो ज़ाहिर है कि निकाल लेते हैं जी, तो शरन भी गुनाह है और साथ ही कानूनन भी जुर्म है। तो जो ऐसा करेगा वो गुनाहगार है, और जो भी इसका जुर्माना बनता है, तावान बनता है, वो भी अदा करना होगा। तावान के माना ये होता है कि जिस चीज जितना नुकसान पहुंचाया उतनी वो चीज दे दे या उसकी रकम दे दे, नुकसान पेमेंट कर दे, ये तावान। और ज्यादा जो होता है वो फिर वो दंड होता है, जुर्माना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है तावान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया है, बिलाल अत्तारी कोलंबो से सवाल कर रहे हैं कि अगर दूसरी रकात में सजदे में नहीं बैठे तो सजदा साहब होगा? अगर 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं और इनमें अगर कायदे उला पर नहीं बैठे, ये वाजिब था, भूल कर अगर भूल गए रह गया वो, तो अब सजदे साहब करना होगा। बाकी 4 नफलें पढ़े अगर, तो उस पहले कायदे में बैठना फर्ज है, तो ये सजदे साहब से फर्ज माफ नहीं होते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल भी है कि अगर एक रुकन में तस्बीह भूल गए तो अब क्या करना चाहिए? तस्बीहात सुन्नत है, अगर एक रुकन की मिकदार रुकू कर लिया, 3 सुभान अल्लाह की मिकदार, 1 सुभान अल्लाह की मिकदार रुकू में ये ठहर गया, तो रुकू तो इसका हो गया। तस्बीहात जो सुभान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ना सुन्नत था, ये नहीं पढ़ा तो सुन्नत छूटी, सजदे सहू इस पर वाजिब नहीं होगा। जानबूझकर भी किसी ने नहीं पढ़ी तब भी सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ये जो सवाल था ये सलात व तस्बीह के हवाले से लग रहा है कि सलात व तस्बीह में अगर एक रुकन में तस्बीह मिस हो गई, अच्छा, तो क्या करना चाहिए? इसमें तो लिखा है, मसाइल तो लिखा है, सारे ज़बानी याद नहीं है मुझे, कि जैसे रुकू में पूरी कर ले, अगर रुकू की भूला है तो अब सजदे में पूरी करे, खड़े खड़े वो उसमें ना करे, कौमा में ना करे, इस तरह के मसाइल लिखे हुए। नमाज के अहकाम में भी शायद मालूम हो जाएगा पढ़ेंगे तो। 300 पूरी करनी है कि इसका नाम है सलातु तस्बीह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रखे और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत बारगाह च है कि जमीन ठेके देना कैसा है? जमीन ठेके पे देना कैसा? अगर जायज़ तरीके से दे रहे हैं तो देना जायज़ है, वो तो देखा जाएगा किस अंदाज में आपने दिया है, वरना शरई एतबार से बहरहाल ठेके पर देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे लिए सुन्नत से मेरा ये सवाल है, क्या रोज़े की हालत में दांत में दर्द होने की वजह से दांत के नीचे तवीज़ वगैरह रख सकते हैं, और क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर।
तावीज़ अगर रखने वाला ऐसा है कि उसका कुछ सियाही निकल कर, कोई चीज़ निकल कर हलक से नीचे उतरेगी, तब तो जायका महसूस हुआ, उतरी तो रोज़ा तो टूट जाएगा। तो ऐसे मौके पर ये मुंह में इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ गए हैं मदनी मुज़ाकिरे में एक सवाल लेकर, और आज का हमारा सवाल ये है कि लोग खाना ज़ाया क्यों कर रहे हैं, और लोग चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। थोड़ी सी बचाने की एक ट्रेंड एक चल पड़ा है कि भाई थोड़ा सा बचाना है। सबके सामने जब खाना खा रहे हैं तो या चाय पी रहे हैं, होटल पे चाय पी रहे हैं, तो थोड़ी सी चाय बचाने की तरफ लोगों का एक रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ये रुझान क्यों बढ़ रहा है, लोगों से बातचीत करते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। खाना ज़ाया किया जाता है, ये क्या बात है? बहुत ज्यादा खाना ज़ाया हो रहा है। ज़ाया बस इनको शऊर नहीं है, शरीयत का पता नहीं है, गलत चीज़ है डेफिनेटली। जिसका एहतराम करें, ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। बस ये ट्रेंड चल गया है आजकल। कसम खाएंगे, हमें थोड़ा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा छोड़ देंगे। जब जरूरत से ज्यादा मिलता है ना किसी को, वो बेकदरा हो जाता है। अक्सर करते हैं शादी हॉल में, आप जाकर देख लें, वहाँ से ज़ाया करते हैं, होटलों पे ज़ाया कर देते हैं, आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं। जो ज़ाया करने वाला है वो ज़ाया करता है, हमारा भूखे जाता है। वे सोचते हैं बस भर के निकाल लो, बाद में पता नहीं खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। खाना नहीं भी मिलेगा, आप घर जाके खा लो खाना। खाने वाले को पता है कि मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकता, तो अब वो उसके दिल में ये बात नहीं आती कि इसको मैं कम करवा लूं। पहले आपको किसी को दे दो तो अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे बकायदा फाइन होता है जो लोग खाना ज़ाया करते हैं। थोड़ा सा बचा है, अच्छा ज्यादा बच गया तो शायद आप बोल रहे हैं कि पैक कर दें तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बचा है, 2-3 बोटियां हैं, फिर कैसा है? फिर हम बोलते हैं कि छोड़ देते हैं। ये किसने पी है? ये मैंने पी है। ये वाली, ये आखिर वाली क्यों बचा दी? बस ये समझते हैं ये स्टैंडर्ड है या हमें तो बचाना चाहिए, कि बस साइको है। झिझकते हैं कि नहीं चलो चीजें पूरे पैसे दिए तो पूरे पीने, थोड़ा सा रह गया तो छोड़ देते हैं। शायद अपने आप को बहुत हाई फाई समझ रहे होंगे, वैसे रेज़े के इसको पूरा पीना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ इस किस्म का रिवाज चल पड़ा है कि थोड़ी सी चाय बचाते हैं, कहते हैं पत्ती है, पत्ती आप छान के देते हैं, कैसे दिखाई? ये थोड़ी सी चाय आई है, इसमें पत्ती आई है, यहाँ का मालिक कौन है? मालिक से याद लेना पड़ेगी ना, मालिक साहब सामने है। अब देखते हैं इसके अंदर जो है पत्ती है या नहीं। ये पूरी चाय पी ली है लेकिन पत्ती नजर नहीं आ रही, थोड़ी चाय बचा दी जाती है, ऐसा क्यों है भाई? पत्ती होती है एंड में इसलिए। अच्छा ये है लोगों में मशहूर कि इसमें पत्ती होती है, लेकिन जिसने पूरी पी है नहीं है पत्ती। जबरदस्ती का ट्रेंड बनाया हुआ लोगों ने, आदत बन गई है। खैर चाय जो है एंड की इससे छोड़ दो, ठंडी हो जाती है। थोड़ी सी बचा देते हैं लोग, इस वजह से अच्छा नहीं लगता, देखने वाला भी बोलेगा कि पहले पी नहीं है चाय। बचाने का एक सिलसिला चल पड़ा है कि कोई भी चीज पी रहे हैं या खा रहे हैं बचा दिया जाता है। आइए इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का अंदाज, कि अमीर अहले सुन्नत जब कोई चीज पी रहे हैं तो आपका अंदाज क्या है, क्या एक कतरा भी बच रहा है, कितना बच रहा है, आइए देखिए। पीते हैं तेरे घर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा एक सवाल है कि हमारे होटल पे कुछ लोग आते हैं जो खाना मंगाते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ बच जाता है, जैसे एक रोटी बच गई, टिक्का बच गया, काफ़ी साफ सुथरा खाना बच गया, तो इसका शरई हुक्म क्या है? अगर वो खाना बच जाता है तो उस खाने का हम क्या करें? हम चाहते हैं कि उस खाने को ज़ाया ना किया करें। खुद खा लें या किसी को खिला दें, ज़ाया तो वाकई नहीं करना चाहिए। होटल में लोग छोड़ देते हैं और वो खाने के काबिल है तो खुद खा लें या किसी को खिला दें। और अगर खाने के काबिल नहीं है मगर ऐसा है कि इसको जानवर खा लेंगे, जैसे मुर्गियां वगैरह खा लेंगी, उनको खिला दें। बिल्लियां खा लेंगी तो बिल्लियों को बोटी छांट के बिल्ली को दे दें। मछली का तो वैसे बिल्ली आशिक होती है, मछली है तो बिल्ली खा लेगी। इस तरह मतलब है कि गाय बकरियां रोटियां खा लेंगी। रोटियां तो नहीं छोड़ते आप लोग, रोटियों का तो हमारे यहाँ तो वो बोरियों में जमा करके उसी टुकड़े के नाम पर जाती है। और सुना इसके बिस्कुट भी बनते, गली सड़ी रोटियां जो होती हैं फफूंदी वाली, ये बिल्कुल इसको साफ मतलब पीस पास के उसको मतलब यानी कि पता नहीं क्या क्या खुशबू मारते होंगे। और इसको बिल्कुल यानी कि जो निचले लेवल की जो बेकरियां होती है ना, ये सुन रखा है कि ये इसके बिस्कुट वगैरह खा रहे बिस्कुट और ये बन जाते हैं, चल जाते हैं।
दोबारा लेके वो गाय बकरे भी खाते होंगे, उसके जानवरों को भी खिलाते होंगे, ले जाते होंगे बाड़ों वाले। अब किसी बाड़े वाले से पूछा नहीं है मैंने कि आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते, ये तवज्जो हो गई कि पूछना चाहिए। या कोई बाड़े वाले का हो सकता है पैगाम आ जाए कि वो लेते हैं नहीं लेते, हो सकता है किसी बेकरी वाले का पैगाम आए कि हम ऐसा करते हैं आइंदा नहीं करेंगे। सारे गुनाह है ये, इस तरह की मतलब है कि वो गली सड़ी रोटियां और पीस के सारे ग्राहक को पता चलेगा कि बिस्कुट उसका मतलब मुफ्त भी नहीं खाएगा वो, अगर ऐसा करते हैं तो। ये सुन रखा है मैंने, सब नहीं करते होंगे यकीनन, मतलब ऐसा भी होता है, मिलावट का दौर है, क्या क्या अचरा कचरा अला वला खिला देते हैं। तो ये कि खाना जाया तो नहीं करना चाहिए, एक एक दाना जो है ये इसका हिसाब है, समझे। और हदीस पाक में है कि उंगलियां चाटने की भी तरगीब है हदीस पाक में, कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है, और जो बर्तन चाट लेता है वो बर्तन उसके लिए बख्शिश की दुआ करता है। तो बर्तनों से जिस प्लेट में हमने खाया, जिस प्याले में खाया, उसको साफ कर लें। बेहतर यह कि चाहे तो धोकर ही पी लें। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में लिखा है कि जो खाने के बर्तन को धोकर पी ले उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। तो अब ये जो सुधरे हुए लोग हैं ना, ये इन चीज़ों में सुधरे हुए कहलाते हैं, अल्लाह वाला सभी हड़प कर जाएंगे। हाँ, खून वाले गोश्त के बारबेक्यू के मजे लेके खाएंगे, इनको पता नहीं होता कि धोए बगैर पकती है। आमतौर पे ये बारबेक्यू, ये गले सड़े कीमों के, ओजड़ियों के, गोबर लगा हुआ कि मैं सब देखा वाला है। गोश्त की मार्केट में मैंने आँख खोली है बचपन में। खैर, तो ये मतलब इसमें मसाले मार के पिसाई होती है, कोई तिल्ली पीसते हुए तो देखा है मैंने, उसमें ये बट धुलना आसान नहीं है। हाँ, कोई साफ सुथरी धोकर पाक करके उसको इस्तेमाल करे तो जायज़ है, लेकिन ये बेचने वालों को क्या है, इस तरह मतलब ये कि ये उसको लाल कर देंगे तिल्ली डाल के इसको, और फिर ये इसमें अदरक और लहसुन वगैरह, ये तो अभी इसको धोने का तसव्वुर ही नहीं है। और ये कबाब समोसे वालों का ये कॉन्सेप्ट है, ये तसव्वुर है बारबेक्यू वालों का। और अपने जो ये कढ़ाई फ्राई जो गोश्त होते हैं ना, नाम सुनकर जिसके पानी आता है मुँह में, ये बगैर धुले पकते हैं। अब मालूम कर लेना, तो पकाता होगा तो अल्लाह बेहतर जाने, बाकी नहीं, मतलब ये बगैर धुले पकते हैं और लोग शौक से खाते हैं। ये सब ये समझे, खून खा जाएंगे, गोबर खा जाएंगे, और हम अगर पानी पिएंगे तो बोले ये क्या मुन्ना लोग ये क्या कर रही है, ये कोई तरीका है? यही तो तरीका है। आपसे तो अच्छा पानी है ना ये जो आप खा पी रहे हैं रमजानों में। ये गंदी चीजें मस्जिदों में भी होती हैं, लेकिन हर समोसे वाला या हर कबाब वाला ऐसा करता है, मैं ये नहीं कहूँगा। और जो कबाब हमारे सामने मस्जिद में आया है वो इसी तरह का, ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन दुनिया देखी भाली है, बहुत बुरी हालत है। बहुत कुछ खिला रहे हैं हमको, सब खा रहे हैं, हम अगर सादा खाने पर आ जाए ना तो ही बचत है, बाकी ये तरने वाले जो है ना ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो अगर बर्तन चाट लेंगे, हमने जो खाना खाया बर्तन से दुआएं लें मगफिरत की, और उंगलियां चाट लें कि सुन्नत है। उंगलियां कहाँ चाटते हैं, ये भी माज़अल्लाह इनको यूँ लगता होगा भाई ये तहजीब, तुम्हारी तहजीब हमको नहीं चाहिए, तुम पहले सुन्नत हैं, हम सुन्नतों पर अमल करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आका की सुन्नत पर सब कुछ कुर्बान। तो ये कि उंगलियां चाटने की है, और ये हदीस पाक में तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो अब ये कि चाय पी, ठीक है ना, चाय पी मैंने, अब चाय के थोड़ी सी लगी रह गई, हो सकता है इसी में बरकत चली जाए। अब तो अधूरा छोड़ देते हैं, बता रहे थे, तो ये भी फैशन पुराना हो गया है, नया नहीं है। हमने अपनी जवानियों में भी यह देखा है लोगों का, चाय थोड़ी बचानी, थोड़ा पानी पी के यूँ फेंकना, पानी फेंकते हैं मतलब थोड़ा सा, बोतल में बचाएंगे, थोड़ी बोतल, खाना बचाएंगे, इस तरह करते हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि पानी, चाय पिया तो उसमें भी पानी डाल के फिर मैं पी लेता हूँ। तुम नहीं जानते कि खाने के हिस्से में बरकत है। चाय भी खाने की जूस है ना, हिस्सा है ना, खाने का ग़िज़ा है ना। जर्रा जर्रा डबल रोटी या
तोस जो होते हैं वो पापे, ये खाना आसान नहीं है, इसके ज़र्रे बहुत उड़ते हैं, इसको भी बचाने की कोशिश होती है। डबल ये रोटी है जो भी तोड़ते हैं थाल के ऊपर तोड़ें तो इसके जो भी रेजे ज़र्रे आटे के जो भी चीज़ें हैं वो गिरेंगी तो आपके थाल या खाने के प्याले पर एहतियात से। और तिल जो रोटी पर लगे होते हैं ये एहतियात करें, हो सके तो तिल वाली रोटियां ना लिया करें। बनवाई रहे तो इनको बोल दें तिल ना डालें, तिल बहुत मतलब ज़ाया होते हैं, कोई पता तो होता नहीं, तोड़ते हैं तो तिल गिर रहे होते हैं, जहन तो बना हुआ नहीं होता, तिल कोई नहीं उठाता। खजूरों पर तिल लगे होते हैं, मैंने मदीना शरीफ में देखा, इतने तिल ज़ाया होते हैं कि ये अपने हिसाब से ये जो भी है ना कि साफ सफाई के बावजूद कारपेट पर तिल नजर आते हैं इन दिनों। अगर कोई मदीना शरीफ का मुसाफिर मेरा यह बयान सुन रहा है तो ये चेक कर लेना, मैंने देखे हैं तिल, फिर भी तिल होते हैं। और मैं जब मुझे तिल नजर आता था तो मैं उसको अपने पेट के लिए कबूल कर लेता था, और क्या अंदाज होता था ये बताते हुए डर लगता है, मेरा अपना अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो तबर्रुक है। अब वो तो ज़ाहिर है कि किसी की मिल्क तो क्या, अब वो जिसने छोड़ ही दिया तो कोई लेने वाला तो इसको है नहीं, इसके कोई बिकेंगे ना, कीमत है, तो ऐसी चीज़ बारीक सी तो खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की जो लोग फेंक देते हैं, अगरचे फेंकना नहीं चाहिए, गलत करते हैं, बाद बेख्याली में भी उड़ जाते हैं जल्दी में इस तरह। तो इन चीज़ों पर, डबल रोटियों पर तिल होते हैं, खजूरों पे, यहाँ तो नहीं देखे तिल, वहाँ होते हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ हो तिल इन रोटियों पर ना लगवाएं। आ गई अगर तिल वाली तो इतनी एहतियात करें कि तिल दस्तरखान पर ना जाए और उठाते हुए आपको शर्म आएगी। फिर आ गए तो अब उठाना तो है, ज़ाया तो करना नहीं है। क्या पता एक तिल जो चला गया वो सारे खाने की बरकत लेकर गया, ये तो मुमकिन तो है कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो हदीस से पाक में फरमा दिया गया, रोटी का टुकड़ा या दाना जो वो थाल के पीछे चिपक कर रह गया वही बरकत ले गया। तो मेरी कोशिश होती है थाल यूं करके जो भी प्लेट या खाना खाए ना, कोशिश करता हूँ कि देख लूँ ये इधर उधर कोने खाचे में कि कोई दाना है तो नहीं, दाना ही नहीं, आधा दाना चौथाई दाना जरा, कोशिश होती है मेरी। तो आमतौर पर अब दावतों में तो जाना होता नहीं है मेरा, लेकिन ये कि घर में भी ऐसा करता हूँ। कहीं दावत में भी अगर गया बाहर मुल्क में तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है मेरा, तो वहाँ मतलब मौका मिलता है कभी दावत में जाने का। लेकिन दावत के जो हाल होते हैं ना, इनमें तो शायद अभी तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। हाल में सुना गाने और ये सब होते हैं, अब इसमें अपना तो क्या काम है, नहीं जाना चाहिए। अगर वाकई कहीं फिल्मी गाने या गाने बजते हो, म्यूज़िक बजते हो तो नहीं जाना चाहिए। अल्लाह हमको बचाए, गुनाह भरे माहौल से बचाए कि वहाँ गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या करेंगे। हाँ, नात शरीफ जब पढ़ी जा रही है वहाँ मौत आती है, मरहबा। मौत आ जाए मुझे तेरे, मौत आए मुझे तेरे जिक्र के, मौत आए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूँ मैं आमीन, आमीन। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात ख्वां अपने मखसूस अंदाज में सुना दो नहीं शेर। मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, मौत आ जाए तेरे कहता मैं आमीन, रसूले अरबी दिल से कहता मैं आमीन, रसूले अरबी। आपने जो माशाल्लाह चंद मदनी फूल अता फरमाए,
حدیث پاک میں ہے کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں خیریت رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو کھانا ضائع کرنے کا جیسے ہوٹل والے نے حضور آپ سے سوال بھی کیا کہ ہم کیا کریں، تو مالک عموماً کاؤنٹر سے اٹھ کر یہ آئے اور یہ ساری اس طرح کے نظام بنائے اور پلیٹیں الگ الگ کرے، یہ مشکل ہوتا ہے. اگر تمام ہوٹل والے ان تمام مدنی پھولوں کو کہ کھانا ضائع نہیں ہونے دینا کو اگر اختیار کریں اور اپنے ویٹرز کی تربیت کریں اور باقاعدہ اس کے اوپر ان کی ٹریننگ ہو اور ایک حساب کتاب سے پھر ان کی جاب رکھی جائے، کیونکہ آپ نے جیسے روٹی کے ٹکڑے فرمائے نا، اب اگر یہ روٹی کے ٹکڑے بھی اگر یہ اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے کہ سارا لپیٹ لیتے ہیں ایک ٹب میں ڈال دیتے ہیں، یہ عموماً بڑی دعوتوں میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ اب بچ گیا تو یہ سالن، رائتا، کسٹرڈ، بریانی جو بچ گیا وہ سارے کے سارا وہ اٹھیں گے ٹب میں ڈالیں گے اور یوں مطلب کہ پھر وہ بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے. کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ویٹرز کی یہ ٹریننگ کر دینی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہ سب کے الگ الگ برتن رکھ دیں، روٹی میں ڈال دیں، فرائی میں ڈال دیں، بلے بچی ہوئی ہے، چاول میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں، کسٹرڈ میں ڈال دیں. یہ اہتمام کرنا پڑے گا. لوگوں کی عادتیں واقعی گھروں میں نہیں چھوڑتے تو دعوتوں میں کہاں چھوڑیں گے. ویسے مال موف دل بے رحم ہوتا ہے، وہاں تو ٹیم ورک ہوتا ہے، 4-5 لوگ کھانے کے لیے جائے ہوئے، ایک باپ ہے، بھائی بیٹا ہے، تو بریانی پر ہاتھ رکھنا، تو سالن پر ہاتھ رکھنا، تو کسٹرڈ پر ہاتھ رکھنا، دیکھ کولڈ ڈرنک ہاتھ سے نہیں چلی جانی چاہیے تیرے سے، تو سلاد ملا جمع کرنا. اب جب یہ بیٹھیں گے نا ٹیبل پر ایک تو پورا بوفے ان کا ٹیبل پر لگا ہوا ہوگا نا، سارا ٹیم آف ورک ایسا کام تقسیم ہو جاتا ہے. اب جو جس کی جتنی سمجھ میں آیا بھر کے لے آیا کہ دوبارہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کی پناہ. تو اب وہ جو بچ گیا، اب وہ کھایا جتنا کھانا تھا ان کو، بچ گیا، ویٹر آیا، ویٹر نے وہ ٹب اس کے پاس ہوگا ڈال دیں گے. تو پیارے اسلام بھائیو، اگر ویٹرز کی تربیت ہو جائے، اللہ کرے سب سے پہلے ہماری تربیت ہو جائے. آج جو امیل سنت نے جو مدنی پھول دیے ہیں، ہزاروں معتکفین ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہیں، اتنے سارے عاشقان رسول مدنی چینل پر دیکھو سن رہے ہوتے ہیں، اتنا سوشل میڈیا پر دیکھا سنا جا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں عادت بنا لینا کہ کھانا ضائع نہیں ہونے دینا، پھر دعوت میں نہیں ہونے دینا. اب جو بچ جائے پھر ویٹرز کی تربیت ہو کہ نہیں کھانا ضائع ہونے دینا. اب وہ ادارے ہوتے ہیں ایسے ویلفیئر والے ہوتے ہیں، ایسے بعض اوقات بزنس ہے ان کے کہ یہ بچا ہوا کھانا خرید لیتے ہیں، وہ خرید کے بھی وہ اپنے حساب سے اس کا نظام بناتے ہیں. تو شاید اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک کھانے کو ضائع ہونے سے ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور کھانا کسی کے پیٹ میں جائے، ضائع نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ اگر میں نے جو عرض کیا ایسا کچھ کر لیں ہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بغیر حفظ کے کوئی شخص امامت کروا سکتا ہے؟ بغیر حفظ کے یعنی حافظ نہیں ہے، غیر اچھا حافظ ہونا شرط نہیں ہے امام کے لیے. بے شمار علماء ملیں گے جو امامت فرماتے ہوں گے اور حافظ نہیں ہوں گے. کیا یہ درست ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ پاک اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے؟ تو یہ جو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اناج کی تنگی. یہ بے شک وہ حدیث میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مراد یہی ہے اناج کی تنگی. قحط کے معنی تو یہی ہوتے ہیں. جی یہی معنی، یعنی ایک تو اناج کی تنگی ہوتی ہے، دوسرا قحط اور معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے برکت کا ختم ہو جانا اور بعض اوقات نسلوں کے اندر کمی واقع ہو جانا. تو یہ بھی جو بعض وعیدیں آئی ہیں اس نسلوں میں یا نسلوں میں؟ نسلوں میں جی، اولاد میں جی. تو اس کو بھی بعض علماء نے دیگر احادیث کے تحت لکھا ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. اور ان کو جو لگتا ہوگا ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاتھوں ہاتھ وہی ضرورت ہو رہی ہے. کئی مالدار وہ ڈیفالٹر بھی تو ہو جاتے ہیں، کنگلے بھی تو ہو جاتے ہیں.
پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ زکوٰۃ ہے کتنی، تو کیونکہ یہ بالکل ایک چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، جس کے اوپر فرض ہوتی ہے عموماً وہی جانتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے، جبکہ اس نے بھی صحیح اندازے سے وہ کیلکولیشن پراپر ہے، مگر پتہ یہی چلا کہ نہیں دیتے. اگر میں تو کہتا ہوں نا پاکستان کا کم از کم یہ کہ اتنے مالدار ہیں کہ اگر یہ سارے مالدار زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچے تو شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے. اتنے مالدار ہیں، خربوں پتی، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. جی اعتکاف میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ نابالغ بچے عطر لگا رہے ہوتے ہیں، کیا نابالغ بچوں سے عطر لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں. لگا مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے کہ وہ نہیں باتوں کا جمعے میں اس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں اور بچے آ رہے ہوتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں عطر کی بوتل ہوتی ہے، یہ لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ صلاۃ و سلام میں پہلے دیکھتے تھے کہ جب یہ تو بظاہر یہی کہ باپ دیتا ہوگا، بھائی دیتا ہوگا، کوئی اور نماز بیٹا ذرا لگا دو، ہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو یہ تو پھر حرج نہیں ہے. ہاں اگر ذاتی پتہ ہے کہ یہ بچے کا ذاتی عطر ہے تو نہ بچہ لگا سکتا ہے نہ ہم لگوا سکتے ہیں اگر ذاتی ہے تو. اچھا اگر یہ بیان کے دوران کوئی کر رہا ہو تو، جیسے کہ لوگ جمع ہیں کسی کا بیان سن رہے ہیں، جیسے فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی آئے اور سب کو خوشبو لگا دے جائے، چلو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بیان سن رہے ہو تو خوشبو بھی لگاؤ، تو کیا فرماتے ہیں؟ نہیں یہ غلط طریقہ ہے. خوشبو چھڑکتے بھی ہیں. تو ایک بار پہلے دیکھا اکا دکا چند بار کہ کوئی صاحب آ کر چھڑکتے تھے وہ کچھ گلاب کا پانی یا بہرحال پانی میں کوئی عطر ڈال کر، تو میں نے تو یہیں لائیو ان کو سمجھا دیا کہ اس طرح تو کوئی بیچارہ توجہ سے سن رہا ہو، یہ ٹھا کر کے آپ نے مارا اس پر، تو کہاں کا کہاں نکل جائے گا. اور پھر یہ کہ بعضوں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، کسی کو الرجی بھی ہوتی ہوگی اس سے، خوشبو سے اس کو چھینکیں شروع ہو جائیں بیچارے کو. تو یہ طریقہ تو غلط ہی ہے. آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب کا کام تو نہیں ہے، یہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. ماشاءاللہ سعادت مند تھے، چھوڑ دیا اسی وقت. مطلب انہوں نے کہا کہ اب آئندہ نہیں کروں گا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور ترکیب بن گئی. یہ بعض جگہ محفل نعت میں بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھا ہے مدینے کے تصور میں اور آپ سمجھتے میں اچھا کام کر رہا، آپ نہیں ہوں، یہ لہرایا فوارہ شر کر کے، وہ تو مدینے اگر پہنچ بھی گیا تھا واپس آنا پڑے گا نا، اس کو توجہ ہٹ گئی نا اس کی. تو یہ کیوں مطلب کس نے سکھا دیا کہ یہ کوئی کار ثواب ہے یار؟ یہ اس طرح لوگوں کو تکلیف دینا سب کا نہیں ہوتا. مطلب یہ اب عطر لگانے میں بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعضوں کو ہوتی ہے الرجی. عطر لگے گا تو کھال کو تکلیف، اس کی ناک پہ رکھا تو اس کو کچھ چھینکے یا ہوتی ہے بعضوں کو الرجی. تو یہ عطر ویسے بھی کیمیکل ہوتا ہے، یہ کیمیکل ہی ہوتے ہیں. یہ اصلی طرف تو کتابوں میں لکھا ہوگا، مطلب کیا ہے بہت مشکل ہے. یہ پڑھتا بھی نہ کھائے نا اصلی عطر، تو پیسے کون دے اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مکہ مکرمہ کی فضائیں ہوں، احرام کی حالت ہو اور ذکر بھی ہو رہا ہو، جس کا ہو رہا ہو تو یقیناً سنیں. یہ تو احرام میں بھی لگا دیتے ہیں. وہ ویسے یاد آ گیا مجھے بعضوں کا، وہ سنہری جالیوں پر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ یوں اسپرے مارتے ہیں. تو اب کوئی بیچارہ احرام کی نیت کر کے آیا ہے، آقا سے اجازت مانگ رہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور بس وہ بیچارے کی خیر ہے کیا. اور یوں مارنے سے آزمائش ہے یار. لوگ نہیں سمجھتے یار، یہ سمجھتے ہیں تو ہر کام وہ کہ جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، نیکی ہونا ضروری نہیں ہے. کسی اچھے عالم و مفتی سے، ہر عالم کی بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے معذرت کے ساتھ، اچھا مفتی ہوگا ایجڈ تجربہ کار، شاید وہ ہماری درست رہنمائی فرمائے. تجربہ ہوگا نا اس کو. کبھی مارا میں ایک بار جلوس میلاد میں یوں عطر چھڑکا، یقین مانے میری گیا آنکھ میں. آگے جو بھی ہوا آپ اس کو بھول جاؤ. میرا کیا حال ہوا ہوگا، صحیح بولتا ہوں، آنکھ میں عطر گیا یار.
मारा, मुझे याद आ गया। उसने बेचारे ने मोहब्बत में कहा मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ इतने अच्छा हो, मुझे मेरा तजुर्बा याद आ गया। तो अभी भी कोई अगर वसवसों का शिकार होगा कि यार खुशबू अच्छी चीज़ है तो आँख में लगाने की थोड़ी है यार, कोई इसका भी हर चीज़ का एक तरीक़ा कार होता है। हर एक खुशबू हर एक को चलती भी नहीं है, बाज़ औक़ात नाक में गले में प्रॉब्लम करती है, जैसे सूंघते हैं ना तो लगता है कि गले पर अटैक हो गया। नकली चीज़ें भी काफ़ी बनती है ना जी, आपको अब लगानी ही हो, किसी लोगों में लगाते हैं चलो सही है, आप जाके लगा यानी कि वो इसके पास इतने लेकर खड़े हो जाकर यूं कर दे ना तो लगा दे, जो यूं करे उसको लगा दे वरना आगे गुजर जाए, तो यूं लगाना इजाजत है। दिल चाहिए एक अभी मेरे को बेटे बेटे सूझी गया यानी कि इजाजत कैसे मांगे, और सलात व सलाम में लगाते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने, खुशू तो कि आदमी बिल्कुल यानी कि डूब कर आका की याद में सलाम पढ़ रहा है और इत्र लगाई जा रही होती है, वो अल्लाह बेहतर जाने। तवज्जो तो आदमी कहते हैं, आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है हुजूर। बाज़ औक़ात इत्र डार्क कलर की होती है, हार्ड कलर की होती है, ये हाथ में लेकर यूं भी मलते हैं, ये मैंने खुद अपने मुझे तो ये अपने बाद में देखे तो खुशबू ने निशान दोनों अपने को यूं लगे कि अगला दोनों देकर गया है। याद कैसे करेंगे उसको, नाम है बदनामी सही, उसने मेरे कपड़े खराब किए। अल्लाह अल्लाह। अब आपको एक मंजर दिखाता हूँ, आइए नाजरीन, आपको आप भी देखिए। उनका आ गया आता, उनका आ गया आता, उनका आ गया आता, उनका आ गया आता। शोर था ये हर जानिब, हश्र में जिधर जा। एहराम की हालत में मक्के का रास्ता, मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते हुए माशाअल्लाह। क्या आप थे इस गाड़ी में? आपके साथ होगा ना इंशाअल्लाह। आप थे क्या? नहीं मैं नहीं, आपके साथ होंगे। कौन है, मैं तो पहचान नहीं सका। ये अपने तौफिक भाई थे, तौफिक हाजी तौफिक। समझ गया माशाअल्लाह। तो ये चलो मेरा तखल्लुस तो भूला जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चले इस रास्ते में पीर साहब को याद करते हुए जा रहे हैं, तो अच्छी चीज नजर आई माशाअल्लाह। आपके साथ भी इंशाअल्लाह चलेंगे ना। तराने मुस्तफा के झूम कर पड़ता हुआ निकले, तराने मुस्तफा के झूम कर पड़ता हुआ निकले, जो हज को के गिर जाओ, नजर जब गुंबद नजर जब सबस गुंबद पर पड़े, गश के गिर जाओ, तेरे कदमों में जाने से उस घड़ी
محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے اگر میثاق پہ پیشی ہو گئی تو ہائے بربادی گناہوں کے سوا میرے گناہوں کے سوا کیا میرے نام میں بھرا نکلے پڑوسی خلد میں یا رب بنا دے اپنے پیارے کا یہی ہے آرزو میری یہی دل سے دعا نکلے رسول پاک سے میرا سلام شوق کہہ دینا رسول پاک سے میرا سلام شوق کہہ دینا قریب گنبد خضرا تو جب باد صبا نکلے الہی بات آئے گنبد خضرا کے سائے میں الہی بات آئے گنبد خضرا کے سائے میں مدینے میں جنازہ دھوم سے تار کا نکلے مدینے میں جنازہ دھوم سے کار کا نکلے ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے یوں حج کو چلے مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی چل رہے ہو نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سلام کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا بات تو سنیں, آپ چل رہے ہیں نا؟ رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ مارکیٹ جا رہے ہیں. مارکیٹ کس کے ساتھ بھائی؟ بھائی میرا دوست عامر کھڑا ہے, اس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ بھی چلو, مزہ آئے گا. ہاں مزہ تو آتا ہے, لیکن مارکیٹ تو بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے. امی کے ساتھ یا ابو کے ساتھ؟ امی ابو کے ساتھ تو میں کب کا ہوگا آ گیا, اب میں دوبارہ جا رہا ہوں. لیکن اتنی جلدی میں وہ سب خیریت تو ہے نا؟ ارے بھائی امی ابو سے چھپ کے جا رہے ہیں, اگر امی ابو نے دیکھ لیا نا جانے نہیں دیں گے. چلتے ہو تو چلو. امی ابو کی اجازت کے بغیر میں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, اور مارکیٹ جانا تو دور کی بات. ارے بھائی یہی تو دن ہے مارکیٹ جانے کے, عید کے بعد تو مارکیٹوں میں سناٹا ہو جائے گا. ابھی تو رش بھی ہے, مزہ بھی آئے گا. مزہ تو اپنی جگہ پر امی ابو سے اجازت لے کر جانا چاہیے, اور بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے. آج کل تو چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اب بڑے لے کر ہی نہیں جا رہے تو کیا کریں. اور رہی بات بچوں کو اٹھانے کی نا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بھی کتنے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں اور مزے مزے کی چیزیں خرید کے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. مارکیٹ میں رش بہت ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. کتنے بچے تو مارکیٹ میں رش ہونے کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں یا پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور بعد میں ہمارے پیرنٹس پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. گم تو وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں تو اپنے گھر کا ایڈریس بھی معلوم ہے, اور مارکیٹ سے گھر آنے والا راستہ بھی پتہ ہے مجھے. پیرنٹس تو فضول میں پریشان ہوتے ہیں. ویسے بھی گھر والے ہمیں باہر بیچ کے گھر کا سودا منگواتے رہتے ہیں نا. چلیں امیر رسول سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ اپنی چیزیں لینے کے لیے اور گھومنے کے لیے اس طرح جانا چاہیے یا نہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا
खाका आपने देखा, फर्जी खाका है बच्चों को नसीहत के लिए। माँ बाप से छुपकर जाना तो ये माँ बाप से बेजारी वाली बात है ना, कि माँ बाप तो ले ही नहीं जाते हमको, तो कोई बात नहीं, माँ बाप अगर नहीं ले जाते इसमें भलाई होगी कि बाद औक़ात बच्चों को इसलिए नहीं ले जाते, ये बच्चे वहाँ रास्ते में दुकान के पास खड़े होकर बाद औक़ात जिद करते हैं, अड़ जाते हैं, खड़े हो जाए ये लूँगा ये लूँगा। अब ये कि हर चीज़ या तो माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि दिला सकें, गुंजाइश नहीं होती, या ये कि इसकी भलाई इसमें नहीं होती इस बच्चे के, ये अभी लेगा और 2 दिन में तोड़ देगा, इतनी महंगी चीज़ कैसे इसको दिलाते हैं वगैरह, कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर ये कि कभी बच्चा भीड़ में बिछड़ जाता है तो माँ बाप को अलग परेशानी होती है। तो आजकल तो बाज़ारों में रात के वक्त, हमारे कराची में तो भीड़ होती है, सारे बाज़ार तो नहीं खुले होते होंगे, बात चीज़ें जो ईद से जिनका ताल्लुक होता है तो वो खुली रहती होंगी। तो इसमें मतलब ये कि बच्चों को छुपकर भी नहीं जाना चाहिए माँ बाप से, और माँ बाप अगर नहीं ले जाते तो माँ बाप से नाराज़ भी नहीं होना चाहिए और बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर के बड़े यूँ तो मेरी माँ नहीं ले जाती तो मेरा बाप मेरे को यूँ नहीं करता है, ये ले नहीं जाता। ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है, गंदे बच्चों का काम है कि घर की बातें बाहर करें, माँ बाप की बुराइयाँ बाहर करें, तौबा नहीं करनी चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यदी अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदीन मरकज़ फैज़ान मदीना में पूरे माह के एतकाफ़ का सिलसिला जारी है और बेशुमार आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में बलोची ज़ुबान बोलने वाले आशिकान रसूल मौजूद हैं और ये बलोची में कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबुल मदीना कराची से दारुचे इत्तकाब सिकंदर अत्तारी मनी सवाल हजरत साहब तई किराम शेख के जने आदम मसीते तो का चौकाना कुरान वाने कहाँ या इन्ना। या सैयदी इनके सवाल का खुलासा कुछ इस तरह है, क्या औरत मस्जिद में कुरान की तालीम दे सकती है? आजकल तो वैसे भी कहीं देखा नहीं कि उस तरह सुना नहीं कि औरत मस्जिद में कुरान की तालीम देती हो। ज़ाहिर है कि औरत को तो वैसे ही पर्दे का हुक्म है, मस्जिद के अंदर तो तालीम वही, एक तो सूरत वही है कि देती भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है इस तरह उसे इस तरह तालीम देने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मुर्शिद फैज़ान या मुर्शिद फारूक नगर लाड़कणो है यकमा एतकाफ लाए हाजिर बियंगा बिना फयाज हुसैन अतारिने हुजूर थराय है सवाल के यतीम 10 फेर नगा छखा छिय फजीलत है। या सैयदी इनके सवाल का खुलासा कुछ इस तरह है, क्या यतीम के सर पर आद फेरने की फजीलत क्या है, उसके बारे में इरशाद फरमाएं। अच्छा, ये पहले ये दोनों ने अपना अपना बताया कि हम कहाँ से आए हैं, कितने दिन के एहतिकाफ रहे, तो ये ज़रा बता दें, बता देना चाहिए। नहीं जी, इन्होंने तो बोल दिया, अब जो तर्जमा कर रहे हैं वो शायद भूल जाते होंगे। ये पुराने गोलीमार से तशरीफ ले आए हैं। अच्छा अच्छा, फिर लाल इमामे वाले लाड़काना से जी माशाल्लाह, लाड़काने से आए 1 माह के एहतिकाफ के लिए। चलो, कोई माह का होगा, कोई 10 दिन का होगा। अच्छा, आपने वो यतीम के सर पर हाथ फेरने का पूछा कि इसकी फजीलत, तो अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, जो शख्स यतीम के सर पर सिर्फ अल्लाह के लिए हाथ फेरे, अल्लाह को राजी करने के लिए हाथ फेरे, तो जितने बालों पर इसका हाथ गुजरेगा हर बाल के
مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی بارگاہ رسالت میں بارگاہ رسالت میں کسی نے دل کی سختی کی شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. ہاتھ پھیرنے کا طریقہ بھی حدیث پاک میں ارشاد ہوا. تو ایک اور حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لاؤ، بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے. ہم اگر لڑکے کو یتیم ہوگا تو یہ ادھر سے پیچھے سے لے کر سمجھو آگے کی طرف آ رہے ہیں، باپ ہوگا تو یہ یہاں سے شروع کر کے یہاں پیچھے کی طرف لے جائے گا. یتیم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نابالغ ہو. جب بالغ ہو گیا تو اب یتیم نہ رہا، ورنہ تو پھر ہر شخص یتیم اکثر ہوتا ہی ہے. آگے چل کے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کے ماں باپ تو عام طور پر فوت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یتیم کی لیمٹ ہے کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہوا یتیم ہے. بالغ ہوا اس کے یتیم کے احکام پورے ہوئے، ختم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب. ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کیا عید سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عید سے بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے. پہلے سے بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں. زندگی بھر اس کا وقت ہے، اس کی قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ادا ہے. لیکن بہتر وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیو، روزانہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور درست جواب دینے والے کو 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی فری بکنگ بھی دی جاتی ہے. کل جو اسلامی بھائیوں سے سوال ہوئے تھے تو وہ سن لیجئے. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کے لیے رحمت ہیں؟ جواب، تمام جہانوں کے لیے. سوال نمبر 2، سب سے افضل اور بہتر زبان کون سی ہے؟ جواب، عربی. سوال نمبر 3، چشمہ حیات سے کس نبی علیہ السلام نے پانی پیا؟ جواب، حضرت خضر علیہ السلام نے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سفیان رضا ملیر کراچی، بنت کریم بخش اتاریہ واکینٹ، بنت لیاقت علی ہاشمی ٹبہ سلطانپور، بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، اویس رضا کامرہ، بنت محمد اشرف سیالکوٹ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کے ذریعے نکلنے والا نام اویس رضا کامرہ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اب کل کے لیے ناظرین کو جو سوالات مزید دیے جا رہے ہیں، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں کر کے لکھیے اور کل عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، کیا عام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے کی اولاد کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، کھانے کا برتن کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ